History, class 11th. Name Jagdish Kumar. Qualification MA B.Ed. Designation lecturer in history. School HSS Naksini, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और यूनिट आज 9वां यूनिट है और यूनिट का नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 का यूनिट है ये। क्वेश्चन है इसका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है इसमें। Why did industrial revolution first take place in England? England was the first country in the world where the industrial revolution began in 18th century. 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ। It had far-reaching consequences. It gave an altogether new direction to the England society. तो इंग्लैंड की सोसाइटी को नई डायरेक्शन देने वाला है ये रिवॉल्यूशन। Soon the revolution spread in the other countries of Europe. Here it seems pertinent of the students to understand the prominent causes which understand industrial revolution in England. A brief account of these causes as under. अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ कैसे, इसके काजेज क्या क्या थे। तो पहला टॉपिक है इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस। Political stability and traditional and tranquility prevailed in England during the 18th century. It prepared appropriate environment for the setting of the industries in England. तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटिंग हुई इंडस्ट्रीज़ की इंग्लैंड में। जॉर्ज III, the British monarch, during his reign 1760 to 1800 BCE, made untiring efforts in transforming England into an industrialized country. Such an effort on his part proved successful to a large extent. Powerful navy. At that time, England possessed far more superior and powerful naval force as compared to the other nations of the Europe. Other nations में सबसे आगे था नेविगेशन में। Therefore, she was called the mistress of the seas. Mistress of the seas कहा जाता था। Such a powerful navy on the one hand ensured protection from foreign invasion and on the other hand made it possible to export her finished goods. With such case, it gave impetus to the process of industrialization. तो इंडस्ट्री में जो भी गुड्स जो चीज़ें बनती थी उनको बाहर भेजने के लिए इनके पास नेविगेशन ठीक था, समुद्री जहाज़ थे। इनसे वो कारोबार आसानी से दूसरे देशों में अपना सामान जो कारखाने में बनता था उसको कर सकते थे। इंग्लैंड कॉलोनीज। इंग्लैंड वाज द बिगेस्ट इम्पेरियलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इम्पेरियलिस्ट कंट्री वर्ल्ड में था। इट हैड सेवरल कॉलोनीज इन यूरोप। यूरोप में बहुत सी कॉलोनीज थी। एशिया एंड अफ्रीका। शी हैड एन ईजी एक्सेस टू द सोर्सेज ऑफ चीप रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर हर इंडस्ट्री फ्रॉम हर कॉलोनल पोसेशन। तो इसकी जो कॉलोनल पोसेशन थे, जिन जिन देशों में इन्होंने कब्जा किया था वहाँ से रॉ मटेरियल इनके पास आता था। रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड द फिनिश्ड गुड्स manufactured by the England industry were also sold forcibly at much higher rates in these colonies. और उन्हीं colonies higher rate पर वो चीज़ें वो बेचते थे। Thus the England industry made the unprecedented progress. तो इस इंग्लैंड में हुई। Capital plays a vital role in the growth of the industries. Everywhere at that time there was no dearth of capital in England. There were 3 causes responsible for it. तो इसके 3 पॉइंट थे। Firstly, the agriculture had made tremendous progress in England. तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी तरक्की की। England enjoyed monopoly over the world trade. तो वर्ल्ड सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड कारोबार इंग्लैंड का था। Thirdly, the East India Company drained extensive wealth from India. तो हिंदुस्तान से इंग्लैंड की कंपनी ने बहुत सा माल लाया था, दौलत लाई थी। Thus the abundance of capital played a remarkable role in bringing about the industrial revolution in England. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसी वजह से हुआ। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड विटनेस्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पीरियड टू द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
तो खासकर एग्रीकल्चर में इट हैड टू इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स. फर्स्टली इट रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. फसलें बहुत ज़्यादा होने लगी नई टेक्निक से. इट प्रोवाइडेड द मनी फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. तो जो पैसा आया उससे उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई. सेकेंडली द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड वाज स्टार्ट विद एन एम टू मेक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इज सक्सेस. तो बड़ी कामयाबी हुई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में. बट दिस आल्सो लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लैंडलेस लेबर्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस इनएबिलिटी to find any alternative sources of livelihood in the countryside. These landless labor started migrating to the urban centers. Here the survival here are forced to work in the factories at lower rates. तो उन्होंने लेबर भी बाहर से लाई इंडस्ट्री में काम करने के लिए कॉलोनल एरिया से. The availability of cheap labor gave a boost to the prospect of industrial revolution. तो उनको कम तनख्वाह दी जाती थी, काम ज़्यादा करवाया जाता था, तो इससे उनको बहुत सा पैसा मिला. एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम. एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम इन इंग्लैंड प्लेड ए रिमार्केबल रोल इन द ब्रिंगिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो इंग्लैंड में बहुत बड़ा एक रोल था ये बैंकिंग सिस्टम का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का. द बैंकिंग ऑफ इंग्लैंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1694. तो 1694 में बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ. इट वाज सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड बाय 1820 CE. मोर देन 600 प्रोविंशियल बैंक वर एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड. 600 प्रोविंस में बैंक की स्थापना हुई. देयर एग्जिस्टेड मोर देन 100 बैंक्स इन लंदन अलोन. 100 बैंक तो उस वक्त लंदन में थे. दीज बैंक्स प्रोवाइडेड ए कैपिटल फॉर सेटिंग अप द रनिंग ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड दैट टू एट कम्प्लीटली लेसर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट पर उनको पैसा भी मिलता था. दिस फैसिलिटेड द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड टू ए लार्ज एक्सटेंट. मिनरल. द availability of minerals in England played a significant role in bringing industrial jobs. तो जो मिनरल जो था वो भी बहुत ज़्यादा था इंग्लैंड में. कोल एंड आयरन वर अवेलेबल अबाउंडेंटली. तो कोल और आयरन भी वहाँ पर बहुत मिला. अनफॉर्चुनेटली बोथ दीज मिनरल्स वर अवेलेबल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. इट फर्दर cemented the foundation of the industrial revolution in England. Besides these minerals, other minerals like lead, bronze and tin were also available in abundance. तो ये चीज़ें मिनरल्स वहाँ पर अवेलेबल थी, मौजूद थी उस धरती पर. Scientific progress. England was the first European country where several new inventions were made. तो बहुत सी इजादें भी इंग्लैंड में हो रही थी. As a result, several new instruments and machines were invented. These invents proved to be the backbone of the industrial revolution. तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट चीज़ें मशीनें ईजाद हुई इंग्लैंड में जिससे कारखाने बनाने में आसानी हुई, चीज़ें बनने लगी. These inventions proved to be the backbone for the industrial revolution. This revolutionization of the modes of transportation played a remarkable role in giving a new direction to the prospects of the industrial revolution. तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.